friends, welcome to my channel. So in this video series we are covering methods of proof, and in last class we had done direct proof, right? So today we are going to start indirect proofs. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डायरेक्ट प्रूफ दो टाइप्स के होते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव एंड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. सो इन टुडेज क्लास we will cover proof by contrapositive. Okay, let's begin. If you watched my all videos of logics, then you will come to know कि contrapositive is very familiar word, right? And if you are new to my channel, then so मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. Okay, conditional statements are equivalent to three equations, that is converse, inverse and contrapositive. So contrapositive says कि negation of Q implies negation of P. This is equivalent to conditional statement. इन्हें मैंने ट्रुथ टेबल से सॉल्व किया था एंड उसको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ओके. Contrapositive says we know P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P, right? जैसे डायरेक्ट प्रूफ में था, वी एज्यूम दैट P is true. यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे negation of Q is true and we have to show negation P is true. हमें ये प्रूफ करना है negation P is true. So डिफरेंस क्या हुआ डायरेक्ट प्रूफ में एंड इनडायरेक्ट प्रूफ में? ओके, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट प्रूफ में जैसे क्वेश्चन है, assume n is even then n square is even. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे? हम assume करते थे p is even and हम assume करते थे q यानी कि n square is even, right? even यानी कि 2k, right? हम ऐसे सॉल्व करते थे. बट कॉन्ट्रापोजिटिव सेज कि अगर n is even, right, तो here p is n is even and q is n square is even. So we have to do negation of both the statements. So negation will become negation of p is n is simply not आ जाएगा, right? तो n is not even. एक इंटीजर के सिर्फ दो टाइप्स होते हैं, दैट इंटीजर विल बी या तो ऑड होगा या इवन होगा. अगर वो इवन भी तो डेफिनेटली वो ऑड होगा, राइट? सो n is not even. हम इसको एक तरीके से सॉल्व करते हैं कि n is odd and negation of q will be, हमें प्रूफ करना होगा n square is odd. आप समझ रहे हैं? हमें डायरेक्ट प्रूफ में जैसे जैसे गिवन होता है हम वैसे वैसे सॉल्व करते हैं, बट कॉन्ट्रापोजिटिव से कहता है हमें उसको नेगेशन करके देन सॉल्व करना है. इन्हें हम एग्जांपल से समझते हैं. ओके, एग्जांपल सेज प्रूव दैट इफ m plus n is greater than or equal to 73, then n should be greater than or equal to 37 or n should be greater than or equal to 37, where m and n being a positive integer. ओके, ये क्वेश्चन है. सो सबसे पहला स्टेप होता है हमें p and q को आइडेंटिफाई करना होता है, राइट? सो m plus n is greater than or equal to 73 will be p, and from here m is greater than or equal to 37 or n is greater than or equal to 37 will be q. हमें बता रखा है कि अगर m plus n बड़ा है 73 से, हमने एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, तो हमें प्रूव करना है कि दिस पोर्शन दैट इज q विल बी ट्रू. ओके, बट हमें ये करना किससे? कॉन्ट्रापोजिटिव से. तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या कहता है? नेगेशन ऑफ q implies negation of p. So here is q, m is greater than or equal to 37 or there is a or operation, okay, or n is greater than or equal to 37, right? इनका नेगेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली नॉट लगाना पड़ेगा. एंड अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ,
डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर नॉट है, सो नॉट दोनों पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड जो ऑपरेशन है वो फ्लिप हो जाएगा, राइट। सो it will become not m greater than equal to 37, not n greater than equal to 37, and all flip होके क्या बन जाएगा and। ओके, अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। not m greater than equal to 37 यानी कि m 37 के ना तो बराबर है ना उससे बड़ा है, सो डेफिनेटली या तो वो 36 होगा या 36 से छोटा होगा, राइट। So m will be less than equal to 36 and similarly n is less than equal to 36. Okay, so here's a property. The property is property of inequality that says a is less than equal to c and b is less than equal to d, that is equal to a plus b less than equal to c plus d. So according to this, a is less than equal to c यानी कि m is less than equal to 36, so m plus n, a and b को हमें ऐड करना है ना, तो m plus n is less than equal to c plus d, that is 36 plus 36, that is equal to 72. Okay, so ये इक्वेशन हमें एट द एंड में मिली है एंड p क्या था हमारा, p is m plus n is greater than or equal to 73, so negation p will be m plus n less than or equal to 72, राइट। p क्या कह रहा है कि m plus n या तो 73 होगा या 73 से बड़ा होगा, तो negation जो होगा मतलब डेफिनेटली या तो 72 होगा या 72 से छोटा होगा, so the both conditions are true, hence proved by contradiction. Okay, last question says prove that n square is odd and n is odd. अगर आप इसे कंपेयर करें डायरेक्ट प्रूफ से, तो वहाँ डायरेक्ट प्रूफ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ दैट n is odd then n square is odd. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रूफ दैट n square is odd then n is odd, अगर आप इसे डायरेक्ट प्रूफ से करना चाहे तो आपको स्क्वायर रूट करना होगा एंड दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, सो इसे हम कॉन्ट्रापॉजिटिव से सॉल्व करते हैं। प्रूफ दैट n square is odd, this is p and this is q. Okay, so negation p will be n square is even and negation q will be n is even, right? So हमें क्या प्रूफ करना है, negation q implies negation p. negation q क्या कह रहा है, n is even and negation p is n square is even. so हमने इसका मतलब कि हमें assume कर लिया कि ये ट्रू है एंड हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। ओके, तो ट्रू के अकॉर्डिंगली n इज इवन यानी कि n इज इक्वल टू 2x और हमें प्रूफ क्या करना है, n स्क्वायर इज इवन, तो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड n स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 कॉमन लिया 2 into 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को एज्यूम कर लिया एक वेरिएबल t एंड रिजल्टेंट विल बी 2t, राइट, एंड 2t इज इन द फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर्स। ये जनरल इक्वेशन है इवन इंटीजर्स की, तो हेंस प्रूफ कि n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव।